خدا کیا چاہتا ہے, خدا کی معلومات کیا ہے, تب جا کر تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو. ہاللیلویا. بائبل یہ چیز ہے, یہ بائبل کا نچوڑ ہے. اور میں اکثر اوقات یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی مسیحی رسومات ہوتی ہیں, خاص کر کے جب نکاح کی رسم ہوتی ہے, تب بھی کلیسیا کی طرف سے کلام کو جھٹلایا جاتا ہے. خادم جو بیان کر رہا ہوتا ہے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے. اور جب جنازے کی رسومات ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی لوگ بار بار ٹائم دیکھتے ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی جنازہ ہو گئے تھے, جان چکے. خدا کے کلام کی باتوں کو جھٹلایا جاتا ہے. جب میموریل سروس ہوتی ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر چھوٹی جی بات ہوئے کہ دیکھتے ہوئے نا بات, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ, غصہ مت کیجیے گا میری باتوں کو, میں ایک مینٹالٹی اوور آل بات کر رہا ہوں. زیادہ تر لوگ مسیحی رسومات پر لوگوں کو دیکھنے اور ان کے لباس, ان کے طور طریقے اور یہ چیزیں زیادہ ان پر غور کرتے ہیں. زیادہ لوگ یہ لیندے رہتے کیڑا انہوں نے فون کیتے آیا, کیڑا نہیں آیا, کیڑا جنازے سے آیا, اسی بھی سارے جی گئے سی, وہ آئے نہیں. میموریل سروس سے زیادہ یہی لوگ دھیان کرتے رہتے ہیں کہ ویلا آئے نہیں سی, کہہ کے بھی آئے سی. یہ باتیں یقین جانے ہم کہتے ہیں کہ ہم نافرمان نہیں ہیں, ہم بہت بڑے نافرمان ہیں جب ہم خدا کی کلام کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں. ہم غور ہی نہیں کرتے. ہمارے لیے بحث یہ ہے کہ ہم دوسروں کا احسان کرنے آئے ہیں. اگر میموریل سروس پر اس لیے آئے ہیں کیونکہ وہ بھی ساڑھے آئے سی, جنازے میں ایسے نہیں گئے ہیں کیونکہ وہ بھی ساڑھے آتے ہیں. ہم خدا کے کلام کو ترجیح نہیں دیتے, خدا کے کلام کی باتوں پر دھیان نہیں لگاتے. یقین جانیے یہ خدا کا کلام ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب, کوئی ایسی تفسیر, کوئی ایسا لکھا ہوا پیغام نہیں آیا جو زندگیاں بدل دے. بعض خدا کا لسانی, لفانی, مبدل کلام ہے جو زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے. ہاللیلویا. بائبل کے اندر اتنی پاور ہے, اور وہاں اس کتاب کے سننے والے, اس کلام پر غور کرنے والے اور اس کلام پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. وہاں اس کلام کی آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو نجات کا پیغام نہیں ملے گا. یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے نجات کا پیغام, خوشخبری دلاتی ہے. پر ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے, ہم نے کبھی دھیان ہی اس پر لگایا. ہم تو ٹائم دیکھتے ہیں, ٹائم کتنا ہو گیا. یقین جانے آج کے بعد اپنے عبادات کا ٹائم نہیں نوٹ کرنا, آج کے بعد اپنی زندگیوں کا ٹائم نوٹ کرنا کہ کتنا ہو گیا ہے اور میں کہاں پر ہوں. آئیے میرے ساتھ نکالیے پطرس کا عام خط, کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ضروری تھا کہ کلام خدا کو کھولنے سے پہلے چند ایک باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. مقدس پطرس کا عام خط اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت سے پڑھیں گے. غور کیجیے گا, جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ کھولیے میرے ساتھ. خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے, اے پیارو, میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سب کہیں آمین. ہاللیلویا. خدا کا خادم ہے, خداوند کا رسول ہے, اور بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ کہتا ہے, اے پیارو, میں تمہاری منت کرتا ہوں. غور کریں, خدا کا خادم ہے, یسوع کا پیروکار ہے, اس کے ساتھ رہنے والا ہے, اور آج لوگوں کے سامنے, ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کے سامنے منت کر رہا اپنے ہاتھ کے اندر کہ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو
परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है। आज हम दो बातों पर फोकस करेंगे। बातें तो बहुत है, हम दो बातों पर फोकस करेंगे, परदेसी और मुसाफिर। क्या आपने कभी किसी परदेसी की जिंदगी पर गौर किया? कभी आपने किसी परदेसी के हाल पर निगाह की हो, किसी परदेसी की जिंदगी पर गौर की हो कि उसकी जिंदगी कैसी होती है? जब कोई शख्स अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है, प्रदेश में जाता है, तो ज्यादातर उसका ध्यान किस मुल्क की तरफ होता है? केड़े मुल्क की तरफ? अपने मुल्क की तरफ। और फिर सोचता क्या है? तो गरीब साढ़े वर्गा जावे ना, साल ना पहले सोचता है कि की करना है, अपना घर बनाना। क्या करना जाकर? अपना घर बनाना है। वो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उन्हें वो फॉलो करता है, कंपनी के कानून को फॉलो करता है, इसलिए ताकि पीछे मेरा घर बन जाए। मैं प्रदेश में हूं और इसलिए आया हूं ताकि मैं यहां पर मेहनत करूं और अपना घर बना सकूं, अपनी फैमिली को मैं स्टेबल कर सकूं। ज्यादातर उसका यही मरकजी नुक्ता होता है, मेहनत करता है। और बाप जिसने उसे भेजा होता है, बाप भी देखता है, गौर करता है कि मेरा बेटा प्रदेश में गया है मेहनत करने के लिए, और जब वापस लौटेगा तो मेरे लिए कुछ लेकर आएगा। मेरा बेटा मेहनत करेगा और मेहनत की कमाई से मेरे लिए कुछ लेकर आएगा। हाँ, इस बात पर गौर करें। अगर बेटा 50 साल, 60 साल, 70 साल या 80 साल या 100 साल लगा लें, 100 साल प्रदेश में रहकर वापस आए और खाली हाथ हो तो बाप क्या सोचेगा? मेरे साथ हैं आप? बाप क्या सोचेगा? बेटा नशे में लत हो, बेटा उसके कपड़े गुनाह के तत्वों से भरे हों, ज़नाकारी और हरामकारी के निशानात उस पर हों, चोरी फरेब और ठगियों के दाग उस पर हों, लड़ाई के दाग उस पर हों, ऐब जोई और झूठ के दाग उस पर हों, तो बाप क्या सोचेगा? सोचिए, गौर कीजिए, की सोचेगा? चंगा सोचेगा? चंगा सोचेगा? बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। वो इस जमीन पर रहते हुए अपने वक्त को जाया कर रहे हैं और भूल गए हैं कि मैंने जाना है अपने बाप के पास और उससे जाकर अपना मुंह दिखलाना है, फिर जाकर बताना मैंने क्या किया जमीन पर। और आज ऐसा ही हो रहा है। 70 बरस गुजर गए हैं, 50 साल गुजर गए हैं, 40 साल गुजर गए हैं, जवानियां चली गई हैं, बुजुर्गी आ गई है, लेकिन लोग उसी हाल के अंदर पड़े हैं, गुनाह की लत में लगे हुए हैं, नशे की लत में पड़े हुए हैं। गुनाह ने अपना गुलाम बनाया हुआ है, वो उस कुबड़ी औरत की तरह गुनाह के नीचे दबे हुए हैं। आज तक नहीं सोच रहे कि मेरा बाप मेरा इंतजार कर रहा है, मैं प्रदेश में हूं, मैंने अपने घर वापस लौटना है, अपने घर की फिक्र छोड़ दी है, अपने मकान बनाना छोड़ दिया है, अपने घर को त्याग करना छोड़ दिया है, दुनिया की अय्याशियों में से घेर दिया है। मेरी बहन, मेरे भाई, गौर कर, तेरा मकाम कोई और है, तू जहां के लिए नहीं है, ये आरसी है, दुनिया ये फानी है, तू चंद सालों के लिए यहां पर मौजूद है और तू भूल बैठा है। दुनिया की ख्वाहिशों ने तुझे बुला दिया है कि तू कहां है। बात मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, तो लोग जाते हैं यूरोप, तो उत्थे जाकर नवी शादी करवा देते हैं, पिछे बेचारे बीवी बच्चे रुल जाते थे, उत्थे जाके उन्होंने अपना ही सेटअप शुरू कर दिया। इस तरह होता कि नहीं होता? ये मैं मिसालें दे रहा हूं कि हमें समझ आए। और आज हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, असि अपनी एक दुनिया बना ली है,
क्यों? क्योंकि हमने बाइबल पर गौर नहीं की। बाइबल तुझे नॉलेज देती है, बाइबल तुझे सिखाती तू क्या है, तू क्यों बेचा गया है, तेरा मकाम क्या है, तेरा आने वाला जहां क्या है, उसके लिए तुझे क्या प्रिपरेशन करनी होगी, तेरी तैयारी कैसे होनी चाहिए, बाइबल में सिखाती है। और कीजिए मेरे अजीजों, बाइबल को जब जिन जिन हालात में हमने जुटलाया है, जब जब हमने बाइबल को जुटलाया है, हम गिरे हैं, हम पस्त हुए हैं, हमने नकामी को देखा है। जब जब आप बाइबल को ठुकराते हैं, बाद लोग कहते सानू तो पढ़ना ही नहीं होता, पासा बसे की करिए, तो सुनना भी नहीं होता जो पढ़ना नहीं होता। मैं यही कह रहा कि असी मोर की सर्वस से भी असी यही देखते रहने हैं कि जल्दी काम खत्म होवे, असी निकाहां से भी यही देखते रहने हैं, असी जनाजे से भी यही देखते रहने हैं, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया। मेमोरियल सर्विस से मुराद है मेमोराइज करवाने वाली सर्विस, कुछ याद दिलाने वाली सर्विस, यादगारी की इबादत, कुछ याद दिलाए आपको, यही तो याद दिलाना होता है आपको। और इन्हीं बातों पर आप गौर नहीं करते कि तू किस लिए भेजा गया है, तूने कहां पर जाना है। यही गल्लां ते तुहानू याद कराउणियां होंदियां हैं, यही तुसीं सुनदे नहीं हैं। फिर हमारी जिंदगी कैसी, हम परदेसी हैं, ये जहां हमारा नहीं है। दूसरी बात कौन सी थी? मुसाफिर। क्या आपने सफर तो सारे नहीं किया है, कभी किसी मुसाफिर की जिंदगी पर गौर की है? चलो ला लो मियां चलो तो बंदा लाहौर जा रहा, 4-5 घंटे का सफर आ, दो शख्स एक ही गड्डी दे विच बैठ के जा रहे हैं, सफर तय कर रहे हैं। एक शख्स है, सेम गाड़ी में दो शख्स जा रहे हैं, एक शख्स है जो नशे में, जो आंखों से हरामकारी में, शायद फिजिकली हरामकारी से या दुनिया की मुख्तलिफ ख्वाहिशात से अपने सफर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। कोई चोरी शिकारी से जैसे भी अपने सफर को तय करने की कोशिश कर रहा है कि 4-5 घंटे का सफर है, ऐदा ही लंघ जावे ऐसे जो माहौल से। और दूसरा शख्स है उसी बस के अंदर है, वो खुदा के कलाम को ऐसे मोबाइल पे खुदा के कलाम सुन रहा है, गीत सुन रहा है, पैगाम सुन रहा है, कह रहा है कोई जिंदगी का पता लगता है शायद सफर दे विच ही खुदा बुलावा आ जाए, लेकिन वो खुदा के कलाम की बातों पर ध्यान लगा रहा है कि ये मेरा सफर ऐसे तय हो। और एक शख्स है कि वो रास्ते में पैसे अय्याशियां कर रहा है, और दूसरा है कि वो सिर्फ थोड़ा मोटा गुजारा कर रहा है कि थोड़ी बहुत चीज लाभ जाए, सिर्फ पेट भरे। मेरी मंजिल ये नहीं है, बल्कि मेरी मंजिल वो है जहां पर मैंने जाना है। समझ आई कि नहीं? एक बंदा चलो बैठा, उसकी मंजिल की है लाहौर है, वो अपनी मंजिल की तरफ सोच रहा है कि मेरी मंजिल की है, मेरा मकाम हुआ। और एक बंदा कह रहा है कि सिर्फ सफर यही मेरी मंजिल है, करना चाहिए याशी जिन्नी की जाती है, गुनाह बदी एदे च कर ला, यही तेरी मंजिल है। शायद वो सोचा बैठा ही मंजिल है। और ऐसा ही आज भी हो रहा है। खुद आपने गौर करनी है अपनी जिंदगी पर, आप कौन से मुसाफिर हैं? क्या हम ऐसे मुसाफिर हैं जो अपनी जिंदगी का सफर गुनाह की लत में गुजारे, रात दिन बदी दे विच गुजार के असि कह रहे एक ना एक दिन मारी जाना, जिंदगी थोड़े दिना दी है। लोग कहते 4 दिन की जिंदगी या खुशी ना गुजार लो, अय्याशी करो, मौज मस्ती करो, लेकिन कुछ कहते हैं 4 दिन की जिंदगी मसीह में गुजारो, जिंदगी तो आगे है, ऐ तो 4 दिन का सफर है, रहना तो मैं जाके लाहौर आ, ऐ तो मेरा सफर है। यही इंसान जमीन पर सफर कर रहा है। बाइबल मुकद्दस में से हमें एक बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मिलती है 2 मुसाफिरों की। मैं मुसाफिर के साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इन्होंने जरा तैश करना चाह रहे हैं। वो तो मुसाफिर नहीं लिखा, बाद च ना तुम क्यों बाद च मैंने फटते फिर इतने कितने लिखा मुसाफिर केड़ी बात च बैठे थे, सीमा से बैठे, डैबो च बैठे थे। 2 मुसाफिर का हमें एक बड़ा अच्छा वाकया मिलता है, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। 2 शख्स हैं, सेम जगह पर है, सेम उनके पास वक्त है, और अक्सर ही तुसी जनाज़े ते मेमोरियल सर्विस में उन्होंने वाकया बड़ा सुनते हो। मुकद्दस लूका दी इंजील दे विचों पता लग गया किसी ने कि नहीं? जी पास साहब ने बताया कि दौलतमंद और किसकी
غریب لازر کی. یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے. غور کریے دو اشخاص پر. کلام مقدس لوکا طبیب کی بات کو لکھی گئی ہے یسوع مسیح کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 19ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا, ہر روز خوشی مناتا, شان و شوکت سے رہتا تھا. ایک دولت مند ہے, وہ بھی زندگی کا سفر کر رہا ہے اس جہاں میں, اور کیا کرتا ہے, اچھے اچھے لباس پہنتا ہے. نو ڈاؤٹ, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنے, آپ اچھے لباس نہ پہنے. دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ دولت مند نہ ہو, آپ کے پاس اچھے لباس نہ ہو, آپ کے پاس پیسے نہ, اچھے گھر نہ ہو. خدا چاہتا ہے آپ خوش رہیں. لیکن اگر یہی دولت آپ کو خدا سے دور کر دے, گناہ اور بدی کی طرف لگا دے, تو یہ آپ کے لیے نقصان ہے. یہ آپ کو ابدیت سے خارج کروا دیتی ہے. اور کلام کہتا ہے کہ وہ ہر روز خوشی مناتا, شان و شوکت کے ساتھ رہتا. وہ بھول چکا تھا کہ میرا مقام کیا ہے. وہ سمجھتا میرا سفر یہ ہے, یہی میری منزل ہے. سمجھ ڈال رہے کہ نہیں؟ جڑا میرا 4-5 گھنٹے کا سفر ہے کہ یہ میری منزل ہے, یہی میری منزل ہے. ایدے وچ ہی کر لائش, پارا اچھے اچھے کپڑے, جو کچھ تو کر سکتا ہے تو کر دے اسی میں. لیکن کلام میں لکھا ہے 20ویں آیت دیکھیں, اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے, بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. دوسرا ایک اور شخص ہے اسی جگہ پر, وہ بھی اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے, ناسوروں سے بھرا پڑا ہے, غریب ہے, لاچار ہے, دکھی ہے, پریشان ہے. اور یہاں تک اس کے زخم ہے کہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاہتے ہیں. لیکن صرف اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنا سفر چاہے ٹکڑے ہی لب جان روٹی دے, میں کھا کے تھوڑا ہی سفر طے کر لاں گا, منظر میری ایک ہے. ہاللیلویا. صرف اسی بات پر اس کا ایمان ہے کہ میری منزل کوئی اور ہے, میرا جہاں یہ نہیں ہے, یہ تو میرا سفر ہے. اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ دوسرا خوشی, ناچ, رنگ, نشہ, عیاشیاں. اکثر نہیں کرسمس آوے, ایسٹر آوے, لوگ کہتے ہیں تو دینا خوشیاں نے 4 اور رات 1-2 بجے تک ڈیک چلتا, نشہ ہوتا, خوب تماش بینی ہوتی ہے, یہی تو دینا. یہ دن نہیں ہے بلکہ یہ سفر ہے. یہ آپ امتحان دے رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں. ایک دن آپ کا نتیجہ آئے گا, رزلٹ نکلے گا آپ کا ایک دن. اب آج کا دیکھے نہیں تسی, ایک ہی کلاس دے سٹوڈنٹ پڑھ دیندے آ, ایک ہی ٹیچر کو پڑھ دیندے آ, ایک ہی سکول دے وچ پڑھ دیندے آ, ایک ہی ٹائم 'چ سکول جاندے آ, ایک فیل ہو جاتا دوسرا پاس ہو جاتا. وجہ کی ہے؟ نتیجہ بھی کٹھا ہی نکلتا نا, ایک ہی ٹائم پہ ہوتا ہے. ایک کیا کرتا ہے, ایک سکول کے قوانین کو فالو کرتا ہے کہ میرے استاد نے مجھے کام دیا, یہ میں نے کرنا ہے, میرے سکول کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, میں نے اسے پورا کرنا ہے. دوسرا کہتا کر دیں گے, چٹ کھیل کے آئیے, دیکھی جائے گی. کئی میرے ورگے سکول جاتے پاستے بیٹے چند مبارک سے ہوتے, پھر جب نتیجہ آتا نا پھر پتہ لگتا ہے, پھر سانو یاد ہوتی ہیں سال دیا گلاں جڑا سے وقت گزاریا ہوتا ہے. ایسا اس دولت مند کے ساتھ ہوا ہے. غور کیجئے, کلام میں لکھا ہے کہ وہ غریب بھی مر گیا ہے, دولت مند بھی مر گیا ہے. ایسا ہوا ہے کہ فرشتوں نے اسے لے جا کر غریب کو ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا ہے. دولت مند بھی ہوا, دفن ہوا, اور اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو, اور اس نے پکار کر کہا, اے باپ ابراہیم, مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تک کرے, کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. یہ وہی دولت مند ہے جنہیں دروازے تے غریب لازر پیا سی تے ادھر ٹکڑے کھا کے پالتا سی.
शायद अच्छा भी ना लगता हो किसी, कई इस तरह के अमीर होंगे उन्होंने अच्छा ही नहीं लगता किसी गरीब के नाल हाथ भी मिलाना, इग्नोर करते हैं, पैसे को हर चीज समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि मैंने अच्छा घर बना लिया है, मैंने अच्छी गाड़ी ले लिया है, मैंने एक मंजिल को हासिल कर दिया है, मैंने अपना मकाम हासिल कर दिया है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं बहुत सारे मसीहियों को ये कहते सुनता हूं कि खुदा ने साथ बड़ा फजल कर देता, बड़ी अच्छी मंजिल से सानू खुदा ने पहुंचा देता, पासा होने से सानू एक मकाम हासिल हो गया है, असी गड्डी ले ली है ते घर बना लिया। नहीं भाई, ये तुझे मकाम हासिल नहीं हुआ, ये तो तेरे रहने की जरूरियात पूरी हुई है, घर तेरे रहने के लिए, गाड़ी तेरे जाने के लिए, ये तेरा तू इसे मकाम समझता है तो धोखे में है तू। अगर तू इसी को अपनी मंजिल समझता है तो अब का कलाम कहता है, बाइबल मुकाशवा की किताब कहती है कि तू कमबख्त है, तू गरीब है, तू अंधा है, तू इसी को अपना मकाम समझ बैठा है। क्या मैं अमीर हो गया हूं, मेरे पास साडा बच्चा नौकरी लग गया है, मुंडा साडा पुलिस लग गया है, सानू भी हुण एक रुतबा मिल गया, ये मकाम नहीं है, ये सिर्फ ड्यूटी है। अपनी जिंदगियों पर गौर करें, आप जिस हालत में हैं, आप कैसे सफर तय कर रहे हैं, आपकी हालत क्या है, आप कैसे सफर कर रहे हैं। और कलाम में लिखा है ये वही अमीर है, फिर उसकी उंगली का सिरा कहता है, उसकी उंगली का सिरा से डुबोकर मेरी जुबान को तारी कर दे। वो नासूर से बड़ा बड़ा, अगर हम किसी के गंदे कपड़े देख लेना तो अमीर शख्स ये नहीं चाहता किसी की गंदी चारपाई होवे ना तो घर नहीं जाते, किसी से मिलना गवारा नहीं करते। फिर वही अमीर शख्स कह रहा है यही वो नसूरा वाले हाथ सी, इन्हां ते वो फोड़े वो जख्म सी जिन्हां नूं कुत्ते चढ़ते सी, फिर कहंदा ओही हाथ दे नाल मेरी जुबान ही तार कर दे, मेरी जुबान को ही ला दे। ये मकाम है। इसके बाद जब आप मसीह की जिंदगी नहीं बसर करते, जब इस दुनिया को जहां समझ बैठे हैं, कलाम में लिखा है बाप अब्राहम ने कहा कि बेटा याद कर, तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका है, तेनों उदों बड़ा सिखाया जाता सी, बड़ा समझाया जाता सी, और तू कहना नहीं दुनिया ही अच्छी है, दुनिया जो दुनिया ना वो तेरे का मजा ही कितने नहीं है, और गरीब रासर। मैं ये नहीं सिखा रहा कि तुसी अच्छे खाने ना खाओ, अच्छी चीज़ें ना, बल्कि गौर करें कि इन्हीं चीज़ों का अपना सब कुछ समझ ना ले। जो चीज़ आपको खुदा से दूर कर दे, चाहे वो पैसा है या कोई इंसान है, वो महज आपके लिए एक बुत है, वो आपके लिए एक बुत है जो आपको खुदा से दूर कर दे। और अब्राहम ने कहा कि तू अच्छी चीज़ें ले चुका है, ए बुरियां चीज़ां हुण की है, तेरे और साढ़े दरमियान एक गड़ा है, ना तू इधर आ सकता है ना वो उधर जा सकता है, उत्थे ना सिफारिश चलनी ते ना पैसे की खेड़ जे। वो मकाम मसीह में हासिल होता है। मुझे इस दौलतमंद की बड़ी अच्छी बात लगती है, मैं जब भी इस वाक्य को पढ़ता हूँ मुझे इसकी बड़ी अच्छी बात लगती है। वो बात है, मेरे साथ निकालिए 28वीं आयत निकालिए। दौलतमंद कहता क्योंकि 27वीं आयत में देखें, उसने कहा पास साहब बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो इस अजाब की जगह में आए। बड़ी अली गल मैंने चंगी लगती है, इन्हें पिछले गौर की मेरे 5 भरा भी इसे काम च पे, और इसने कहा कि लाजर को भेज जाके उन्हें बताए वो बच जाए, कहीं इसी मकाम में ना आ जाए, इसी आग के अंदर ना आ जाए, मेरे भाइयों तक ये पैगाम पहुंचा दे। और अब्राहम ने क्या खूब बात की है, उसने कहा मूसा है, अंबिया है, वो सब पैगाम पहुंचा रहे हैं, ऐसे उन्होंने भी सुन दे, अजी की सुननगे, जेड़ा बेचारा है ही गरीब सी, जेड़ा है ही बीमार सी। और आज भी मेरे से ऐसा ही हो रहा है। इस वाक्य को अगर आज के दिन पर जोड़ूं तो आज भी ऐसा ही हो रहा है। हम गौर करते हैं कि आज के खातमीन है, पास्टर शवाज जेवर साहब है, पास्टर नईम साहब है, मुश्ताक साहब है, आज भी 33 साल के अंदर यही पैगाम पहुंचा रहे हैं, कहीं साहब के अंदर चले जाए, कहीं साहब के अंदर चले जाए। वो तेरा मकाम नहीं है,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਪਾਦਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, पहले साइकिल पे ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ आ गए। ये बातें महज आपकी सोच है, ये आपके ख्यालात हैं। खुदावन ने इसे पैगाम दिया है कि मेरी बेटी मेरे बेटे तक ये पैगाम पहुंचा कि कहीं वो इस आग में ना आ जाए, कहीं वो उस आग में ना आ जाए। खुदावन चाहे तो उसे मोटरसाइकिल दे, चाहे उसे गाड़ी पर भेजे, चाहे उसे जहाज पर भेजे, बेचता इसलिए है कि तुझ तक पैगाम पहुंचे। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਵੇਖ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, पादरी पता नहीं वेला पादरी ने घर भी अच्छा बना लिया। तो नो, ये हमारी सोच है। खादिम दिन रात तुझ तक पैगाम पहुंचाने के लिए मेहनत करता है कि कहीं आप उस आग के अंदर न चले जाए। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। और आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि आप किस तरह सफ़र कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी की कश्ती कैसे चल रही है, कैसे आप उसे ले जा रहे हैं। आप कब कब आपका कलाम पहुंचा है, किस किस जगह पर। मेरी एक और बात सुनो, जैसे धोखे च ना रहे हो, उत्थे जाके भांडे भी नहीं चलने। स्कूल भांडे चल जाते हैं ना, स्कूल जिवें भांडे चलते हैं, उत्थे भांडे नहीं चलने, ज़मीन ते भी चल जाते हैं। पादरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਝੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਇਹ ਫਲਾਣ ਫਲਾਣ ਦਿਨ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ क्यों नहीं कबूल किया। पास्टर मुश्ताक साहब ने हर संडे हर वक्त आपको एक पैगाम पहुंचाया था कि आपने तौबा करनी है, खुदा की बादशाही में जाना है, तो उदो क्यों नहीं गौर की थी। फोन आके कहने सानू किसी ने दसिया ही, साडे तक किसी ने पैगाम ही नहीं पहुंचाया। लास्ट बात मैं करना चाहता हूँ, हमें कैसी मौत मरना चाहिए। बातें तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन गौर करें हमें कैसी मौत मरना चाहिए। ज़बूर 116 उसकी 15वीं आयत में देखें तो खुदा कलाम में लिखा है कि मुकस्सों की जो मौत है वो खुदा की नज़र में गिरां कदर है, खुदा की नज़र में बड़ी अहमियत रखती है मुकस्सों की मौत। जब कोई मुकद्दसीन जब मुकस्सीन मरते हैं तो खुदा की नज़र में उनकी मौत बड़ी गिरां कदर है, बड़ी मतलब म्यार रखती है। क्या आप ऐसी मौत मरना चाहते हैं जो खुदा की नज़र में गिरां कदर हो। कलाम में लिखा है जब स्टेफनस को शहीद किया गया तो स्टेफनस कहता है मैं यीशु मसीह को ऐसे खड़े बाएं मिलाए खड़ा हुआ देखता हूं। क्या आप भी चाहते हैं, क्या आपके लिए ऐसा हो। बलाम क्या कहता है, काश कि मैं साधुओं की मौत मरूं। बड़े बड़े नबी पैगंबर ये चाहते हैं कि हमारी जो मौत हो वो साधकों की मौत हो जो खुदा की नजर में गिरां कदर है। और मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं, मसीहत में जो मौत है कोई परेशानी वाली गल नहीं हैगी। मसीहत में मौत कोई हैबतनाक चीज नहीं है। मसीहत में मौत एक खुशखबरी है जो हमें मसीह के साथ मिलवाती है, लेकिन उनके लिए है जो मसीह में है। पौलुस इसलिए तो कहता है कि जीना मेरे लिए और मरना मेरे लिए। वो कहता है फिलिपियों के खत में कहता है दिल तो करता है कि मैं कूच करके क्या करूं, मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यही मेरे लिए बेहतर है। देखिए बड़े बड़े पैगंबर रसूल भी ये चाहते हैं। मौत को एक जरिया है खुदा के साथ मिलवाने का, यीशु तक पहुंचाने का। डरते वही हैं जो अब तक अपनी जिंदगी का सफर गुनाह में बसर कर रहे हैं। वो एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा, लफ्ज़ बड़े पसंद आ इस गीत दे, मौत नहीं है वोटी मैनू लग रही है, यीशु दे नाल मेल बहाना लगदी है।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ कि मैं यीशु ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, मैं यीशु ਨੂੰ मिलांगा। और गौर करें आप कैसी मौत मरना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, जो शख्स एक दफा पैदा होता है वो 2 बार मरता है। जो शख्स एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरता है, और जो 2 बार पैदा होता है वो 1 दफा मरता है। और सोचो क्यों मैं बात कर रहा हूं रूहानी जिस्मानी मौत की और अब्दी मौत की। जो शख्स एक बार आप जिस्मानी एतबार से पैदा होते हैं तो आप मसीह में पैदा नहीं होते, आप तौबा नहीं करते, अपने जीते जी बपतिस्मा नहीं लेते, तो फिर आप जिस्मानी मौत भी मरते हैं और अब्दी मौत भी मर जाते हैं, रूहानी एतबार से भी आप मर जाते हैं। 2 तरह की मौतें ऐसे आती हैं। ताकि दुनिया तो तुझे गए और तो तुझे आखिरत में भी गए, क्योंकि आप मसीह में नहीं है, आपने मसीह को कबूल नहीं किया। मसीह घराने में पैदा हो जाना काफी नहीं है, आप मसीह के साथ पेवस्ता नहीं हुए। लेकिन जो शख्स जमीन पर रहते हुए जिस्मानी एतबार से पैदा होता है, जिस तरह वो निकोदेमुस कहता है फिर माँ के पेट से जाना पड़ेगा, नहीं, फिर वो क्या करता है, फिर वो रूहानी एतबार से पैदा होता है, यानी मसीह में तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, एक और उसकी पैदाइश होती है, फिर वो एक बार ही मरता है, जिस्मानी मौत मारता है, मरदा तो नहीं है बल्कि सोंदा या कलाम कहता, तो फिर वो अब्दियत में चला जाता है। अगर वो तौबा के बाद वो कायम रहता है, खुदा के साथ जुड़ा रहता है, तो वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाता है। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आप किस तरह से पैदा हुए हैं, यानी गुनाह की पैदाइश में है अभी आप, या रूहानियत बात से खुदा की हुजूरी में आप पैदा हुए हैं, आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया हुआ है, आप किस तरह की मौत मरेंगे जिंदगी का नहीं पता लगता। यकीन जाने आज से 7 साल पहले मेरी ज़िंदगी भी किसी की डेथ की वजह से बदली थी। हमारी टीम में एक लड़का था, 14 साल उसकी एज थी, 14 साल की एज में उसकी इमीडिएटली डेथ हो गई, 14 साल की एज में। तो मैं अपने कमरे से लेटिया सोच रहा सी एक दिन, मैं क्या यार जो वो 14 साल का बच्चा मर सकता है, त्यासन तेरी तो फिर 18 साल एज आ, तू क्यों नहीं मर सकता। ਇਹਦਾ मतलब मौत का कोई पता नहीं है कि जे तू मर गया ना तो जिवें दी तेरी जिंदगी है ना गुनाह होता, तो तेरा तो पक्का ही परमट है कि तू जाना ही आगे चाहिए। ये मैं अपने आप से सवाल कर रहा था उस रात 7 साल पहले कि तू तो फिर पक्का ही आगे चाहिए, ये 14 साल का बच्चा मर सकता है। फिर उस रात खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, मेरी ज़िंदगी को बदला। मैंने सोचा कि वाकई ज़िंदगी जो है वो मसीह में है, फिर मौत का डर और खौफ नहीं रहता, क्योंकि यीशु मसीह ने कब्र का सीना चीर कर फतह पाई है, और इसी तरह वो अपने मानने वालों को मौत पर फतह गाली पाने की ताकत देता है। आमीन, हालेलुया। आइए सब आंखें बंद हो जाए, खुदा की स्तुति, सभी सर झुक जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं, इस कलाम पर गौर करें। और आज के जो इस मीटिंग के रहनुमा हैं